Hey, are you a NEET aspirant and confused about whether to go for BHMS or BMS? Then this video is just for you. Here I will discuss about details of BHMS and BMS and give you an idea to choose which is better for you. So do watch this video till the end. So let's start the video. Subscribe and hit that bell icon to never miss a dose of homeopathy. So first, what is the full form of BHMS and BMS? So BHMS is Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery and BMS is Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. And the duration of course is BHMS is about 5.5 years, which include the 4.5 years about the study and the 1 year is about internship, and BMS have the same duration, that is 5.5 years, 4.5 years is about the study and 1 year is about the internship. So now about the syllabus, like the subjects you will have in BHMS and BMS. So first we will discuss about BHMS. So in BHMS in first year you will have anatomy, physiology and biochemistry and homeopathic pharmacy. In second year you will have pathology, forensic medicine and toxicology, organon of medicine and mathematics, in which organon of medicine is about the principles and theories of homeopathy and mathematics is the medicine part of homeopathy. And in third year you will have surgery, gynecology and obstetrics, and also that organon of medicine and homeopathic mathematics. And in final year you will have the practice of medicine and community medicine, which means the preventive and social medicine, and repertory is a homeopathic subject, it is the indexed form of mathematics, homeopathic mathematics, and you also have organon of medicine and homeopathic mathematics. So now about the syllabus of Ayurveda, and here I will read this from the diary because I don't want to do any pronunciation mistake in Ayurvedic subjects. So the first, in first year you will have Padartha Vigyan and Ayurveda Itihash and Sanskrit, because Sanskrit as a subject, because in Ayurveda Itihash some theories, principles you have to read it in Sanskrit, so that's why Sanskrit you have to study Sanskrit as a subject in first year. Then Kriya Sarir means the physiology, Rachna Sarir means the anatomy, then Maulik Siddhant evam Astang Hridaya means the basic principles, and Astang Hridaya matlab basic principles about Ayurveda. Okay, then in second year you will have Dravya Guna Vigyan means the pharmacology, and Roga Nidan, that is the nosology and diagnostic aspects, and Rasa Shastra, that is the traditional ancient Indian medicine, and then Charak Samhita. So Charak Samhita is about the Ayurvedic medicine part. Then in third year you will have Agad Tantra means Ayurvedic toxicology. Then Swastha Vrita means social preventive and social medicine, that is the community medicine. Then Prashruti Tantra and Evam Stri Roga, that is the gynecology. Then Komara Vritya Parichaya, that is the pediatrics, and also the Charak Samhita. Sorry if like pronunciation में कुछ mistakes हो रहा तो I'm really sorry, but बस adjust कर लेना. Okay, so in fourth year you will have Kaya Chikitsa, that is about the practice of medicine or general medicine. Then Panchakarma, that is also an Ayurvedic subject. Then Salya Tantra means the surgery, and Salakya Tantra means it deals with the ENT, ophthalmology and dentistry part. Then you have the research methodology and medical statistics. So that's all about the BMS. We'll discuss about the cutoff marks. I really don't idea about the cutoff marks, but I will give approximate idea that what will be the cutoffs normally. So both in BHMS and BMS you will have मतलब अगर आपको बेस्ट कॉलेज, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में, देन यू हैव टू स्कोर 450 प्लस, and for other government colleges you can score for 400 plus, or like 400 से 450 प्लस तक कट ऑफ स्कोर जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में. एंड इन प्राइवेट कॉलेजेस यू हैव टू स्कोर 350 प्लस. सो बाकी ये एक अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ स्कोर है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता कि किस कॉलेज में कैसा कट ऑफ होगा, बट अप्रॉक्सीमेटली यही कट ऑफ मार्क्स होता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में. But it totally depends upon the college and the availability of seats.
So we'll discuss about the college fees. Like college fees, it totally depends upon this which state you belongs or which state you want to take admission, or totally depends upon the colleges, government colleges, private colleges. So I will give an approximate idea. In government colleges it approximately about 15k to 30k, लाइक 15,000 से 30,000 तक पर ईयर जाता है लाइक कॉलेज फ़ीस. बाकी हॉस्टल फ़ीस अलग सेपरेट है. एंड इन प्राइवेट कॉलेजेस 50k लाइक 50,000 से लेकर 1 लाख तक जाता है पर ईयर. एंड उससे भी ज़्यादा होता है कुछ कुछ कॉलेज में, अगर वो लाइक टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज एंड द सिचुएशन लाइक द सराउंडिंग द स्टेट. सो अप्रॉक्सीमेटली यही जाता है द कॉलेज फीस. सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, लाइक मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि BHMS एंड BMS लाइक हमारा स्कोप क्या है आगे चल के. सो दोनों का स्कोप ऑलमोस्ट सेम ही है. आप हायर स्टडीज़ कर सकते हैं लाइक MD डिग्री, दैट इज़ अ PG कोर्स आप कर सकते हैं. एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स न्यू आर्ट भी हो रहे हैं एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है लाइक बहुत वास्ट लाइक आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वास्ट फील्ड मिलेगा फॉर डूइंग MD लाइक द PG कोर्स. सो आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं एंड यू कैन गो फॉर रिसर्च वर्क्स, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क्स इन नेशनल लेवल और इन इंटरनेशनल लेवल. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर. सो यू कैन गो फॉर रिसर्च वर्क्स and also in state PSCs, and also the central government also take UPSC exams for homeopathic medical officers, Ayurvedic medical officers, or assistant homeopathic medical officers, assistant Ayurvedic medical officers for government PHCs, that is a primary health care center, and various government hospitals as well. And you can go also the private hospitals are also hiring the medical officers of homeopathy and Ayurvedic. And you can also go for the teaching profession in both in government colleges and in private colleges as well. And of course we all know that you can own your own private clinic. And so बेसिकली स्कोप बहुत है कैरियर को लेके. स्कोप BHMS एंड BMS बोथ में बहुत ज़्यादा स्कोप है. बस आपको पढ़ाई करनी है. लाइक मैंने अभी बताया अबाउट द कॉलेजेस, कट ऑफ मार्क्स, द फीस. लेकिन अगर कट ऑफ मार्क के बेसिस पे आपको कुछ अच्छे कॉलेज लाइक आपको इस कॉलेज में पढ़ना है, लाइक हम सबका एक ड्रीम होता है कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, तो अगर वहाँ पे एडमिशन हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है. अगर किस कॉलेज में आपको पढ़ना है लेकिन आपको एडमिशन नहीं हुआ तो ये मत सोचना कि कॉलेज बेकार है. बिकॉज कॉलेज लाइक आपको आपके कैरियर में कॉलेज की मतलब आपको सिर्फ डिग्री देगा कॉलेज, लेकिन आपको पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी. सिलेबस वही सिलेबस है, वही क्वेश्चन पैटर्न से, वही सब्जेक्ट से जो मैंने बताया होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक में. इट्स जस्ट दैट आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है. आपको स्टार्टिंग से आपका एक एम रखना है कि मुझे डॉक्टर बनना है. सो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है. एंड जब आप डॉक्टर बनोगे तो पेशेंट आपके पास ये पूछ के नहीं आएगा कि इसने इस कॉलेज से पास आउट हुआ है तो ये इस कॉलेज का डॉक्टर है तो मेरा मतलब डिजीज़ क्योर कर देगा. ये सोच के नहीं आएगा. वो आएगा कि ये डॉक्टर है, मुझे इनको बताना है मेरा प्रॉब्लम्स एंड ये मुझे उसके लिए मेडिसिन रिकमेंड करेंगे एंड मैं ठीक हो जाऊंगा. तो आपको पेशेंट का वो मतलब वो भरोसा आपको जितना है, आपको पेशेंट को क्योर करना है, आपको अच्छा डॉक्टर बनना है. सो इट डज़ नॉट मैटर विच कॉलेज यू बिलोंग्स टू. सो इसलिए ये मतलब कॉलेज का स्ट्रेस ज़्यादा मत लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिलती. अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल रही है ना तो इसमें मतलब इस सोच में फास्ट ईयर मत गुजार देना कि काश मैं उस कॉलेज में होता. जिस कॉलेज में हो, आपको कॉलेज में एडमिशन मिला, एक डिग्री आपको मिल जाएगा, तो आपको पढ़ाई करनी है. बस पढ़ाई पे ध्यान देना, चाहे आप होम्योपैथी लो या आयुर्वेदिक लो. ओके. एंड स्कोप बहुत ज़्यादा है. लाइक मैंने भी जब BHMS लाइक मैं एक BHMS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ तो मैं ऐसे बायस्ड होगी BHMS के बारे में नहीं बोलूँगी. लेकिन मैं जब BHMS मतलब एडमिशन लिया था तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था दैट क्या स्कोप है एंड ऑल, क्या कैरियर बनाएगी एंड ऑल. लेकिन अब जब मैं फाइनल ईयर में पहुंच गई हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे अब तक बस थोड़ा ही पता है एंड इसके आगे बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत वास्ट स्कोप है. मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है बोथ होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक. एंड अभी ये जो कोरोना सिचुएशन के बाद होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक ट्रेंड पे है एंड आगे हमारे लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है. तो आप होम्योपैथिक लो या आयुर्वेदिक लो,
लेकिन स्कोप दोनों में सेम है एंड बहुत वास्ट स्कोप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो प्लीज़ किसी की बातों में आके मतलब ऐसे नॉर्मल बीएससी या फिर फिजियोथेरेपी में मत चले जाना। बीएचएमएस या फिर बीएमएस, आपको जो पसंद है वो चूज़ करो, लेकिन प्लीज़ चूज़ करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जब फाइनल ईयर में मेरे जैसे पहुंच जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना वास्ट स्कोप है एंड कितना वास्ट अपॉर्चुनिटीज़। सो लास्टली मैं अपना ओपिनियन दूंगी कि आपको बीएचएमएस लेना चाहिए कि बीएमएस लेना चाहिए। सो देखो, फर्स्ट थिंग, इन BHMS and in BHMS the only aim is to be a good doctor. So आपको डॉक्टर बनना है, that's the one and only aim. लेकिन BAMS, अब अगर आपको मतलब एंशियंट इंडियन मेडिसिन आयुर्वेदा पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपके पैशन है, आपको आयुर्वेदा पढ़ना है, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है ये सब के बारे में पढ़ना है, जानना है, क्योंकि दोनों ही मेडिकल साइंस है, आपको दोनों में मेडिकल फील्ड की सब्जेक्ट्स मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इट्स जस्ट द मेडिसिन पार्ट इज़ डिफरेंट। अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन, एंशियंट इंडियन मेडिसिन के बारे में जानना है, उससे आपके पेशेंट्स को आपको क्योर करना है, आपको मतलब सच में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ गो फॉर BMS। एंड ऑल्सो BMS में बस एक पॉइंट ये है दैट इसमें जो थ्योरीज़ है, प्रिंसिपल्स है, वो आपको लाइक संस्कृत में याद रखना पड़ेगा, वो सारे प्रिंसिपल्स को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे बुक्स संस्कृत में पढ़ने होंगे, क्योंकि उसके बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट मतलब मैं जितना जानती हूँ दैट इसके आंसर सेट भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको संस्कृत में ही लिखना है, सिर्फ आपको जो थ्योरीज़ वगैरह उसको कोट करना है तो आप संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल्स को। लेकिन आप अपने लैंग्वेज, आंसर लिखने की लैंग्वेज आप अपने चूज़ कर सकते हैं, लाइक अबाउट द इंग्लिश और हिंदी, और इन सम स्टेट ऑल्सो द रीजनल लैंग्वेज यू कैन चूज़। सो ये एक मतलब अच्छी पॉइंट है आयुर्वेदा में। एंड संस्कृत आपको ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट दिया गया है, जिससे आपको ये ईजी होगा उसकी थ्योरीज़ एंड प्रिंसिपल समझना। सो ये मत समझना कि मुझे संस्कृत अच्छा नहीं लगता, संस्कृत नहीं होता तो मैं कैसे आयुर्वेदा पढ़ सकती हूँ। इट्स जस्ट आपको आयुर्वेदा पढ़ने में अगर इंटरेस्ट है तो गो फॉर इट, एंड लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर फॉर एनी काइंड ऑफ स्टडीज़। सो मैं इतना बोलूँगी, अगर आपका हिंदी और संस्कृत पहले से ही बहुत अच्छा होता है तो go for Ayurveda, it will be more easier for you. And that's about the BMS. And for BHMS, I will say that BHMS homeopathy is based on the nature's law of cure, the law of similars, like its medicines are proved upon human beings. So we can treat the like इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको आप मेंटल डिजीजेस भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्योर कर सकते हो, एंड इन ए जेंटल हार्मलेस मैनर, एंड इट हैज़ नो दैट ह्यूज साइड इफ़ेक्ट्स। सो अगर आपको इस तरह की मेडिसिन पढ़ना है जिससे आप अपने पेशेंट्स को हार्मलेस एंड जेंटल वे में क्योर कर सको, एंड लॉ ऑफ सिमिलर्स आपको पढ़ने में मतलब इंटरेस्ट है, एंड दैट्स इट। अगर आपको इंटरेस्ट है होम्योपैथिक में तो आप ज़रूर BHMS लो। BHMS में बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत अच्छा स्कोप है, दोनों में बहुत अच्छा स्कोप है। इट्स जस्ट आपको कौन सा वाला मतलब आयुर्वेदा या होम्योपैथी जो भी आप अच्छा लगता है आप वो चूज़ कर सकते हो। एंड देन एंड ऑल्सो इन BHMS मुझे ये नहीं पता दैट ये रीजनल लैंग्वेज जैसे संस्कृत में है कुछ स्टेट में, एंड हिंदी में भी अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन बुक्स अवेलेबल है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में भी है, लेकिन आपको आंसर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। बट हिंदी में है कि नहीं इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, सो मैं उसके बारे में नहीं बता सकती। And that's it. But in both the courses, BHMS and in BHMS, at first you will feel a little discomfort because both are new to us. So you will feel little bit discomfort at first, but जब आप फाइनल ईयर में पहुंच जाओगे, लाइक धीरे धीरे आपको मतलब पता चल जाएगा दैट क्या है ये थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, फिर आई एम श्योर यू विल लव इट. Mind that being a BHMS or BMS doctor is not that easy, because you have to read that huge syllabus along with some important life lessons to deal with the criticism, because you will feel like you will face so much criticism and so much inferiority complex in the society. So you have to deal with that. And लाइक मुझे अभी लग रहा है कि ये सारे सिचुएशन के बाद उतना नहीं होगा, बिकॉज अभी सबका सोच बहुत चेंज हो रहा है, बट स्टिल यू हैव टू लर्न दोज लाइफ एक्सपीरियंसेस एज वेल. एंड बी इट इन विच एवर मेडिकल फील्ड यू आर, लाइक
MBBS जाओ, BHMS जाओ या फिर BMS जाओ, मेडिकल लाइफ सक्स, but you will love it at the end. But surely you will love it and enjoy it and experience it. It is a beautiful life experience, any medical field you choose. And at the end, I want to say that all the best to all my lovely juniors and to be doctors. So बस ये एक टिप दूंगी कि अब जो भी फील्ड चूज़ करो, लाइक होम्योपैथिक चूज़ करो या फिर आयुर्वेदिक चूज़ करो, be faithful and loyal to your pathy till the end of your life. Throughout your life remain faithful and loyal to your पैथी, बी इट होम्योपैथी और आयुर्वेदा. आप आयुर्वेदा पढ़ रहे हो तो आयुर्वेदा ही प्रैक्टिस करना पूरे लाइफ लॉन्ग, होम्योपैथी पढ़ रहे हो तो होम्योपैथी ही प्रैक्टिस करना पूरे लाइफ लॉन्ग. अगर आप अपने पैथी, अपने मेडिकल सिस्टम के लिए फेथफुल एंड लॉयल रहोगे तो वो आपके मेडिकल सिस्टम आपको वो सारी चीज़ें देगा वाट एवर यू डिज़ायर. The money, the respect, the love from people, the wealth, the health, everything, the life you desire, it will give you. You just have to give your mind, soul, your hard work, your loyalty, your faithfulness towards your pathy, whichever pathy you choose. So all the best. I hope this video is helpful to you all, and आई होप दैट आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि आपको कौन से मतलब होम्योपैथी चूज़ करना है या आयुर्वेदी. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, योर पैशन, योर इंटरेस्ट, बिकॉज बोथ हैव द सेम स्कोप एंड सेम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑलमोस्ट सेम थिंग. सो दैट्स इट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.